हेलो एवरीवन। क्या आपको अनसीन पैसेजेस करने में काफ़ी परेशानी होती है? आंसर्स फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है? अननोन वर्ड्स और फ्रेजेस आपको कंफ्यूज करते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगी, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे आसान तरीके जिससे कि आप भी एग्ज़ाम्स में बिल्कुल झटपट अनसीन पैसेजेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पहले कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे, तो पहले जो क्वेश्चंस रहते हैं हम उन्हें पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे है द स्टोरी इज़ अबाउट अ डैश शू मेकर लेजी और हार्ड वर्किंग। तो इसे जानने के लिए हम क्या है कॉम्प्रिहेंशन का, हम उसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। Once upon a time there lived a hard-working shoemaker and his wife। तो यहाँ हमें मिल गया कि वो शूमेकर कैसा था, हार्ड वर्किंग था। जो ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड वर्किंग, हम उसे टिक कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हार्ड वर्किंग, बस। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रुप ऑफ बॉयज पेड अ ग्रैंड प्राइज बिकॉज they really liked the pair of shoes, they had a lot of money। तो चले अब हम सब पढ़ लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे। पहले अगर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा और सही में, और मतलब साथ ही साथ कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को भी पढ़ते जाएंगे। They made all kind of shoes. They were very poor. One day they were left with leather enough to make only one pair of shoes. The shoemaker said, "If there is only one pair left to make, what shall we do now?" His wife replied, "Don't worry, we will work something out." Before the shoemaker went to bed that night, he cut the leather to make his last pair the next day. The next morning, the shoemaker came to his shop. He stood in wonder in front of the counter. God, the shoes are made and so perfectly. While the couple admired the pair, a group of boys walked into the shop. They were amazed to see the pair of shoes. They immediately bought it and giving the shoemaker a grand prize। तो यहाँ हम boys paid a grand prize because they really liked the pair of shoes। ए नंबर ऑप्शन होगा। ओके, तीसरा है why did the couple decide to stitch clothes and shoes for the elves? A. They thought the elves were poor and needed help. B. They wanted to thank the elves for their kindness. With the money he got, the shoemaker bought leather to make two more pairs. As usual, he cut the leather and went to bed. The two pair of shoes were made just as the shoemaker entered the shop. The shoemaker said, "My goodness, how is this happening?" His wife replied, "Whoever is doing it has a heart of gold." Just then, none other than the king's messenger walked and spotted the shoes on the counter. He paid in gold for the shoes. This went on for many days. The shoemaker would cut leather and go to bed. The next day, the shoes were ready. The queue outside the shop grew longer and the couple richer. One day, the shoemaker and his wife hid behind the door to see the kind angels who were helping them. In some time, two elves came. They cut, stitched, hammered, and taped till the shoes shone like diamonds and then vanished. The couple came out of hiding and decided to stitch clothes and shoes for the elves. The next day, the two hid again to see what the elves thought of their gifts.
As the elves came, they saw the new clothes and shoes. They wore the clothes and shoes, danced, and then disappeared. The couple never saw the elves again, but they did not need to, did they? तो थर्ड नंबर था हमारा, दे wanted to thank the elves for their kindness. यहाँ होगा बी नंबर. ओके, अच्छा अब हम बी नंबर में चले जाएंगे. बी का क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर दिस मीनिंग. अ पर्सन हु गिव्स अ मैसेज टू समबडी. जब एक आदमी किसी को मैसेज देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वर्ड हमें ढूंढना है. नन अदर देन द किंग्स मैसेंजर. तो यहाँ पे होगा मैसेंजर, पहला वर्ड. यहाँ पे हम ए नंबर लिख देंगे. ओके, दूसरा क्वेश्चन है अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर समथिंग. यहाँ पे लिखा है द क्यू आउटसाइड द शॉप ग्रू लॉन्गर एंड द कपल रिचर. तो यहाँ पे बी होगा क्यू, ये वाला बी नंबर. थर्ड नंबर है बिकेम इम्पॉसिबल टू सी. बी का हीड, छुप जाना. सी नंबर होगा छिप जाना. बिकेम इम्पॉसिबल टू सी. फोर नंबर है लुक्ड एट समथिंग एंड फाउंड इट इम्प्रेसिव. तो यहाँ पे होगा गिफ्ट्स. यहाँ फोर नंबर होगा गिफ्ट्स. गिफ्ट्स. और ये जो मैंने सी लिखा है ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है और पहले वाला 1 नंबर था. ठीक है. वाई डिड द शू मेकर स्टैंड इन वंडर इन फ्रंट ऑफ द काउंटर. The next morning the shoemaker came to his shop. He stood in wonder in front of the counter. God, the shoes are made and so perfectly. एक्चुअली मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है तो मुझे बोलने में भी थोड़ी तकलीफ़ सी हो रही है. तो अगर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो प्लीज़ मैं इसके लिए आपको सॉरी बोल रही हूँ. मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है बट मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं इसका आंसर जल्दी से बता सकूँ आपको. तो ये इसका आंसर है. तो हम इसे इस तरह से भी कॉपी में लिख सकेंगे. द शूमेकर स्टूड इन वंडर इन फ्रंट ऑफ द काउंटर बिकॉज इन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही केम टू हिज शॉप he found that the shoes are made and so perfectly. Group of boys paid the shoemaker a grand prize. A group of boys walked into the shop. They were amazed to see the pair of shoes. They immediately bought it, giving the shoemaker a grand prize. आप इसे भी लिख सकते हैं और चाहे थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं इस तरह से. द ग्रुप ऑफ बॉयज वेर अमेज्ड टू सी द पेयर ऑफ शूज. द शूज वेर मेड सो परफेक्टली सो दे पेड हिम अ ग्रैंड प्राइज. हाइड बिहाइंड द डोर. काइंड एंजल्स हु वेर हेल्पिंग देम. आप इसी आंसर को लिख देना, यही आंसर है थर्ड नंबर का. ठीक है. तो इस तरह से आपने देखा ना मैंने किस तरह से क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ती गई और हमने सारा आंसर बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया. आप भी इसी तरह से अगर इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एग्ज़ाम्स में बिल्कुल इसी तरह से बहुत जल्दी से कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर पाएंगे. आपको क्वेश्चंस भी पढ़ना है और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है. अगर पहले आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो पहले से ही आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर आप कॉम्प्रिहेंशन कीजिए. तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगा होगा. अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगी हो या हेल्पफुल महसूस हुई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.